Okay, students. So let's continue. अच्छा बेटा, हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू डू सम स्पेशल क्वेश्चंस। हमारी क्वाड्रेटिक फार्मूला रहता है, हम उस पर वापस आते हैं। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बेटा आस्क्ड इन रीसेंट एग्जाम्स 2025. So starting from question 1, simplify 4x square minus 9 divided by 2x square minus 13x plus 15, ठीक है। मैं आपको बेटा चैट देख रहा हूँ। हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, हाउ टू सिंप्लीफाई दिस, व्हाट यू कैन डू इन द न्यूमिनेटर। तो बेटा न्यूमिनेटर के अंदर यू विल राइट 2x होल स्क्वायर देन माइनस 3 स्क्वायर. This is what you can do in numerator, and in the denominator you can see a quadratic expression. ठीक है, you have to make factors of this. So how can I make factors of this? 15 into 2 is 30. So 30 is the number, बच्चों. Just tell me two numbers whose product is 30, and that is I think minus 15 and 2. Okay, so these are the numbers 15 and 2. तो हम इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, यू नो इट ऑलरेडी. माइनस 15x प्लस 2x प्लस 15 minus 15x plus 2x plus 15. Okay. बेटा मैंने मिस्टेक की है, ये फैक्टर्स ठीक है बच्चों. 15 टाइम 2 is 30. तो हाउ कैन आई मेक फैक्टर्स जिनका सम करें तो 13 है बेटा. स्टूडेंट चैट में बताएं ना बच्चों प्लीज, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं डिनोमिनेटर्स के. मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या मसला आ रहा है भाई. हाँ बेटा, हाउ टू मेक फैक्टर्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन. अच्छा देखें, ये मैंने बनाया ना 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, ठीक है. तो अब इसके मैंने फैक्टर्स लिखे बच्चों. 15 टाइम 2 इज 30. तो माइनस 15 इंटू 2 इज 30, एंड एंड देयर सम इज माइनस 13, ठीक है. बट ये फैक्टर वर्क नहीं कर रहे, यू कैन सी हेयर. तो टेल मी सम अदर फैक्टर्स बच्चों. व्हाट आर द टू अदर पॉसिबल फैक्टर्स जिनको बेटा मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, एंड जो सम है वो 13 आए. तो दैट विल बी माइनस 10 एंड माइनस 3, ठीक है. सो लेट्स राइट 2x स्क्वायर minus 10x minus 3x plus 15. So it will be 2x minus 3 into 2x plus 3 divided by, let's take beta 2x common from the denominator. So it will be x minus 5. Then take minus 3 common. So it will be x minus 5. Then क्या होगा 2x minus 3 into 2x plus 3 divided by 2x minus 3 into x minus 5. So you can see बच्चों 2x minus 3 will be cancelled out, and the final answer is 2x plus 3 divided by x minus 5. That's it. That's it beta. ये recent question था. So let's start a similar question. Okay. So there is one more question. Simplify
2x square minus 8x divided by 2x square minus 5x minus 12. बेटा आप चैट में मुझे बता सकते हैं प्लीज क्या फैक्टर्स बनेंगे. तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? What can I do with the numerator? What can I do with the numerator, बच्चों? I can take 2x common from the numerator and it is going to be x minus 4. Okay. And the denominator, you have to factorize this quadratic expression. So beta, how can I make factors of 2x square minus 5x minus 12? So is it 12 2s are 24, so 8 3? Is it 8 3? So let's write 2x square minus 8x plus 3x minus 12. Then 2x into x minus 4 divided by 2x common, it will be x minus 4 plus 3 common, x minus 4. Okay, so 2x into x minus 4 divided by 2x plus 3 into x minus 4. So it will be cancel out. X minus 4 will be cancel out. And the final answer is 2x divided by 2x plus 3. That's it. ठीक है बेटा. ये क्वेश्चन मैं इसलिए चूज करूं बेटा, ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था इट वाज आस्क्ड इन दिस ईयर 2025. हफ्सा जी बेटा, हफ्सा यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप इन द जूम चैट. बेटा क्या पूछ रहे हैं? देयर इज वन मोर क्वेश्चन बच्चों सिमिलर टू दिस. सिंप्लीफाई x square minus 4x divided by x square minus x minus 12. So let's simplify this. Let's simplify this. It will be take x common, so x minus 2, x minus 4. And with the denominator, you have to make factors. So will it be minus 4, 3? X square, midterm break, minus 4x plus 3x minus 12. So now take x common from the first two terms in the denominator. So it will become x times x minus 4 plus 3 times x minus 4. So the answer is x into x minus 4 divided by x plus 3 into x minus 4. So students, x minus 4 will be cancelled out and you will get x divided by x plus 3. That's it. Okay students, next. ये बेटा 3 क्वेश्चन मैंने चूज किए थे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं. बेसिकली जस्ट आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करना था. चलें स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला. Students, whenever they say let's solve quadratic equation, so what is quadratic equation? In which the greatest power of x is 2. That is known as quadratic equation. And to solve a quadratic equation, we have a formula that is x is equals to minus b plus minus square root b square minus 4ac divided by 2a. This is known as quadratic formula. So let's start from an example. Let's start from an example. Question: solve using quadratic formula.
x square minus 5x plus 6 equal to 0. So let's solve this quadratic equation using quadratic formula. ठीक है? So बच्चों आप करना क्या है आपने? You have to compare this equation with this equation. This is a standard equation, okay? This is the standard equation. Standard quadratic equation. It is the standard quadratic equation. So please compare this given equation with this standard equation. So can I say that A is going to be here 1? Can we say that A is 1? Hmm? Can we say that B is negative 5? Can we say that C is going to be 6? So that's it. Let's write your values. And A is 1, B is negative 5, C is going to be 6. Simply substitute these values of A, B, C in above quadratic formula. So the answer is x is equals to negative into minus 5 plus minus 5 square minus 4 into A is 1, C is 6 whole divided by 2 into 1. So the answer is 5 plus minus 5 square is 25 minus 24 divided by 2 times 1. स्टूडेंट्स प्लीज परचेज योर टॉपिकल्स. जो टॉपिकल्स मैंने आपको बताए हुए हैं उनको परचेज कर लें. ठीक है? मैंने कल और परसों हमने बेसिक सारा अलजबरा ख़त्म कर देना है. सैटरडे संडे को मैंने ग्रैंड क्लासेस लेनी है. ठीक है? दे विल बी मे बी 2 hours ईच एंड वी विल बी डूइंग ऑल 10 years क्वेश्चंस फ्रॉम अलजबरा. तो मैंने आपको पीडीएफ तो दे दूंगा. आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ बट यू शुड हैव योर टॉपिकल्स इन हार्ड फॉर्म. ठीक है? तो अलजबरा के पेपर 1 के क्वेश्चंस हम करेंगे सैटरडे को. सारे आई थिंक 59 क्वेश्चंस हैं एंड इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट इट विद इन 2 hours. ठीक है? एंड देन ऑन संडे वी विल बी डूइंग अलजबरा फ्रॉम पेपर 2. ठीक है? विद कैलकुलेटर. वो थोड़े से मुश्किल हैं. वी विल सी कि वो कितना टाइम लगा के एंड होंगे. ठीक है बच्चों? तो प्लीज बिफोर योर वीकेंड प्लीज परचेज योर टॉपिकल्स 11th class especially. So 5 plus minus 1, 25 minus 24 is 1 divided by 2. हम बेटा अलजेब्रा में वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे. तो प्लीज आपने वीकेंड से पहले पहले टॉपिकल्स परचेज करने हैं. रिकॉर्डिंग्स मैं बस एक हफ्ते तक दूंगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स मैंने कोई नहीं देनी है आपको. अगर आप लाइव क्लासेस ना ले रिकॉर्डिंग का क्या फायदा बेटा. सो 6 over 2 is 3, 4 over 2 is 2. दैट्स इट. सो दिस इज द यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक और प्रॉब्लम करते हैं बच्चों. x square minus 6x minus 7 equal to 0. Solve by quadratic formula. Solve by quadratic formula. So what was your quadratic formula बच्चों? X is equals to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Okay. So a is 1, b is negative 6, c is going to be minus 7. Why? Because we know that the standard quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. And a is going to be 1, b is going to be minus 6, c is going to be minus 7. So simply substitute these values of a, b, c in quadratic formula. So x is equals to minus into minus 6 plus minus
minus 6 square minus 4 into 1 into minus 7 divided by 2 into 1. So 6 plus minus 36 plus 28 divided by 2. So 36 plus 4, 40, 74, 64. So that's it, beta. 6 plus minus 8 over 2. So 6 plus 8. So values of x are 7 and minus 1. Values of x are 7 and minus 1. That's it, bacho. Okay. Now, student, this is something important. आप इसको बेटा समझें कि comparison between a quadratic formula B, I would say completing square, C, factorization. So students, what will happen if you given a quadratic equation and you solve it using 3 different methods, either quadratic formula, completing square method or factorization. So हम example लेते हैं. उस example को हम first of all we will solve it using quadratic formula, then completing square, then factorization. So let's take the same example. बच्चों, this is the example x square minus 6 x minus 7. देखिए बेटा, इसको मैंने solve किया है हफ्सा. I solve this quadratic equation using this quadratic formula. Okay. And I got these values of x. So now I'm going to solve the same equation with, let's say, completing square method. And we will see कि क्या answer same आता है. So the question is beta, x square minus 6x minus 7. Question is x square minus 6x minus 7 equal to 0. Solve by completing square. Solve by completing square. So if you remember, what was the first step of Alicia? What was the first step of completing square? तो बेटा हम completing square ऐसे करते हैं, हम इस x को लिखते हैं बेटा यहाँ पे. It's a shortcut, बच्चों इसको आप याद कर लें. राफे, we simply write this x over here, okay, this minus over here, so it will be x minus, and then we write square, और यहाँ पे बेटा हम क्या लिखते हैं, we write इस 6 का half, okay, so x minus half of 6, whatever the number is with x, जो भी नंबर बेटा हो, just take the half of that. तो बेटा 6 का हाफ होता है 3, सो 6 का हाफ लिखें 3, यहाँ पे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर डाल दें. ठीक है, ये शॉर्टकट है. एक चीज और भी होती है, माइनस जो नंबर बेटा आपने यहाँ पे लिखा है ना, इसी का आउटसाइड आपने स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये बेटा आपने याद रखना है. ठीक है, ये आपने याद करना है कि आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाना है. दोबारा सुन लें, x माइनस इस 6 का हाफ विच इज 3 एंड देन पुट स्क्वायर ऑन इट, दैट्स इट. माइनस जो भी नंबर यहां पे लिखोगे आप उसका स्क्वायर बाय सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आप लट्टा मार लें. ठीक है, -7 अपनी जगह पे एज इट इज इक्वल टू 0. सो लेट्स सी ये क्या बनता है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, -9 -7 इक्वल टू 0. सो इट इज
minus 16 equal to 0. Bring minus 16 on the other side. So it is going to be x minus 3 whole square is equal to 16. हमने बेटा कल ये इक्वेशन सॉल्व की थी. हाउ कैन आई सॉल्व दिस इक्वेशन? बच्चों आपकी चैट देख रहा हूँ, मुझसे बात नहीं कर रही. प्लीज इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग तो चैट ओपन है बेटा, आप मुझसे चैट कर सकते हो. So x minus 3 का whole square is equal to 16. So please do not expand it, okay? Do not expand this expression. Simply write x minus 3 whole square is equals to plus minus root 16. So square root will be cancelled out. X minus 3 is equals to plus minus 4. X minus 3 is equals to 4. X minus 3 is equals to minus 4. X is equal to 7 and x is equals to minus 4 plus 3 is minus 1. That's it. So if you compare these answers with these answers, so you will see कि बच्चों both answers are same. खदीजा जी मैं आपको अनम्यूट भी कर सकता हूँ. आस्क टू अनम्यूट. जी खदीजा यू कैन आस्क मी बेटा. सर मैं ये बोल रही थी कि चैट भी डिसेबल्ड है और माइक भी अनम्यूट नहीं होता. अच्छा ठीक है. चैट बेटा आई थिंक आप मुझसे कर सकते हो एडमिन के साथ. देखें जरा. नहीं कर रहे? एडमिन के साथ चैट नहीं हो रही? मे बी कल देखते हैं इसको. ज़ारा सेटिंग करवाते हैं. ज़ारा इज एक्सपर्ट इन जूम. अच्छा बेटा मुझसे कुछ पूछना है तो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा यहाँ से. ठीक है. अच्छा बेटा देखिए जो कॉन्सेप्ट है वो समझे ना. आपको इक्वेशन दी है मैंने. आपने उस इक्वेशन को बेटा पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व किया एंड यू गॉट दीज वैल्यूज ऑफ एक्स. देन आई सॉल्व द सेम इक्वेशन विद द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड आई गॉट द सेम आंसर वंस अगेन. तो बेटा आपको प्लीज तीनों मेथड्स आने चाहिए एंड यू विल सी इन द पास्ट पेपर्स कि वो डिफरेंट मेथड पूछते हैं बेटा. ठीक है. चलिए हम इसी इसी प्रॉब्लम को करते हैं फैक्टराइजेशन से. तो बेटा एक और बात सुन लें. फैक्टराइजेशन इज वेरी वेरी पुअर मेथड. ओके. दिस इज वेरी वेरी पुअर मेथड. पुअर मेथड मींस ये बहुत सी जगहों में वर्क नहीं करता. और सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड बेटा क्या है? स्ट्रॉन्ग क्वाड्रेटिक फार्मूला. आपको सोचना नहीं पड़ता ना. आपको बेटा सोचना नहीं पड़ता. एबीसी की वैल्यूज फिक्स हैं, फार्मूला फिक्स है, आपने जस्ट वैल्यूज पुट इन करनी है ना फार्मूला में. दैट्स इट. तो स्ट्रॉन्ग है सबसे क्वाड्रेटिक फार्मूला और सबसे पुअर मेथड है ये फैक्टराइजेशन. और कंप्लीटिंग स्क्वायर बस ठीक है, क्वाड्रेटिक जैसे ही है. हर जगह वर्क कर जाता है लेकिन बच्चों को डिफिकल्टी होती है इसको लगाने में. सो स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व द सेम इक्वेशन एक्स स्क्वायर विद द फैक्टराइजेशन मेथड. तो लेट्स सी कि होता है या नहीं होता. सो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन. तो आई थिंक सो फैक्टर्स बन जाएंगे. हाँ बन रहे हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x माइनस 7 इक्वल टू 0. तो टेक x कॉमन. x माइनस 7 plus 1 common. X minus 7 equal to 0. X minus 7 common into x plus 1 equal to 0. X minus 7 equal to 0. X plus 1 equal to 0. X is equal to 7. X is equals to minus 1. So you got the same answer. जी आयशा. जी बेटा आयशा बताएं. बेटा अब is there any question बेटा आयशा? अच्छा. Using quadratic formula, completing square and then factorization. तो बेटा अब हम एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से करते हैं एंड वी विल सी कि क्या आंसर सेम आता है. बच्चों आपने बहुत से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पास्ट पेपर्स में. ठीक है. आपने घबराना नहीं है. आप जस्ट इस मेथड को समझ लें.
कि हम एक प्रॉब्लम को तीन तीन डिफरेंट मेथड से करेंगे एंड वी विल गेट द सेम आंसर अगेन एंड अगेन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के अंदर इफ आई अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। Can I say that A is 1, B is minus 5, C is going to be 6, and quadratic formula minus B plus minus B square minus 4AC divided by 2A? बेटा ये फार्मूला आपको दिया होता है, ठीक है। X is equals to minus into minus 5 plus minus B square minus 5 square minus 4 into 1 into C divided by 2 into 1. So x is equals to 5 plus minus 25 minus 24. अच्छा आई थिंक किया भी था ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर। So x is equals to 5 plus minus 1 divided by 2. So x is going to be 5 plus 1 over 2, 5 minus 1 over 2. So x is equals to 3, and then x is equals to 2. So these are the two values of x using quadratic formula. Method number 2, completing square. So completing square, क्वेश्चन बेटा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अलीशा, हाउ टू मेक कंप्लीटिंग स्क्वायर? अगर आपको बेटा याद है तो सोचें क्या था, x माइनस इस 5 का हाफ दैट इज 5 ओवर 2, इसका स्क्वायर। बच्चों रट्टा लगाएं, प्लीज रट्टा मार लें इस मेथड को। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x माइनस 5 का हाफ दैट इज 5 ओवर 2। प्लीज डू नॉट राइट इन डेसिमल्स, ठीक है। मैं डेसिमल्स को डिस्करेज करता हूँ, ठीक है बच्चों, आप डेसिमल्स में मत लिखा करें वैल्यूज। तो 5/2 होल स्क्वायर देन माइनस, एक और बात भी थी बेटा, जो ये नंबर होता है इसका आपने बाहर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यू विल राइट माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। सो x minus 5/2 whole square minus 25 divided by 4 plus 6 equal to 0. So x minus 5/2 whole square minus 25 plus 24 that is 1/4 equal to 0, ठीक है। आप इसे कैलकुलेटर में डालें, यू विल गेट दिस वैल्यू। कैलकुलेटर में पुट करें बच्चों, यू विल गेट दिस वैल्यू माइनस 1/4, ठीक है। x माइनस 5/2। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि हमारे आंसर कैसे सेम आएंगे बेटा, आप सोच रहे होंगे हाउ वी विल गेट द सेम आंसर वंस अगेन फ्रॉम दिस। तो आप देखना जादू होगा, सेम आंसर आएगा बेटा। आयशा आप कुछ पूछ रहे हो? मैंने आपको बेटा अनम्यूट किया था, बोल ही नहीं रहे थे। कैंसिल आउट, x minus 5/2 is equal to what is square root of 1/4? That is plus minus 1/2. So 1 by 1, x minus 5/2 is equals to 1/2. X minus 5/2 is equals to minus 1/2. X is equals to 1/2 plus 5/2. That is 6/2, which is 3. X is equals to 5/2 minus 1/2. That is going to be 4/2. That is 2. That's it. देखें बच्चों, जी आयशा आप अनम्यूट है, पूछे बेटा। तो देखें बच्चों, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया यूजिंग कंप्यूटिंग स्क्वायर, आई गॉट द सेम आंसर। उसी इक्वेशन को बेटा मैंने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो वही आंसर आया। सो लेट्स ट्राई योर लक एंड सी whether factorization method work or not.
आयशा बेटा आप अनम्यूट है ना, पूछें। So let's apply midterm break method. So that will be minus 3x. अब बच्चों बताएं, what will be the factors of minus x square minus 5x plus 6? So that will be minus 3x minus 2x plus 6 equal to 0. After taking 2x common and then 2 common, I will get x minus 3 into x minus 2 equal to 0. So x minus 3 equal to 0, x minus 2 equal to 0, x is equals to 3, x is equals to 2. That's it. तो बच्चों आई सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 3 डिफरेंट मेथड्स 2 टाइम्स। मैंने एक एक बेटा मैंने ये एग्जांपल सॉल्व की, ठीक है, इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से किया तो एंड आई गॉट 2 3, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया आई गॉट 2 3, देन फैक्टराइजेशन से किया आई गॉट 2 3। फिर इससे ऊपर भी एग्जांपल थी x स्क्वायर माइनस 6 x माइनस 7। तो बेटा इसको मैंने सॉल्व किया था यूजिंग फैक्टराइजेशन, आई गॉट दिस। Using completing square method, I got the same answer again, Alina Amir. And before that, I solved it using quadratic formula and I got the same answer, 7 minus 1. तो इन शॉर्ट बेटा आपको ये मेथड्स आने चाहिए, ठीक है, आपको ये तीनों मेथड्स आने चाहिए। ठीक है आदिल, आदिल बेटा आप कह रहे हैं कि सर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर दोबारा समझा दें। तो आदिल सुने ना जरा, देखिए बेटा मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट ये होता है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कंप्लीटिंग स्क्वायर। बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया, बस एक स्टूडेंट ने पूछा तो मैं उसको बता दूं। कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर ये होता है कि लेट्स सपोज आपने लिखना है, एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस लेट्स से 2, ठीक है, इसको आपने कंपैक्ट करना है, क्लोज करना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है ना, ठीक है, एक्सपेंड हुआ है तो आपने इसे क्लोज करना है, बंद करना है, कॉम्पैक्ट करना है, तो आप क्या करोगे। तो शॉर्टकट बच्चों को मैंने रटवाया हुआ है। तो शॉर्टकट बेटा ये है कि इस एक्स को चुप करके यहां लिखें, बेटा इस माइनस साइन को यहां लिखें, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस लिखें, अगर यहां प्लस होगा तो यहां प्लस लिखेंगे, ठीक है, इस माइनस को बेटा यहां लिखें। अब यहां आपने क्या लिखना है, ये जहां जो भी नंबर बेटा यहां पड़ा होगा ना एक्स के साथ, आदिल यू विल डिवाइडेड बाय 2, ओके, उस नंबर को बेटा आपने 2 पे डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा आप यहां पे लिख देंगे। अब 4 है तो बेटा 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, तो यहां लिखें एंड देन पुट अ होल स्क्वायर, दैट्स इट। अभी बात पूरी नहीं हुई बच्चों, ये जो भी नंबर लिखा है ना आपने बेटा, इसका आपने यहाँ पे स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा, ऑलवेज यू विल सब्ट्रैक्ट इट्स स्क्वायर आउटसाइड, एंड देन प्लस 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो उसको बेटा नीचे लिख लें, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, सो बेटा इसका आंसर आता है x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, दैट्स इट। एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर एग्जांपल बेटा, लेट्स से x स्क्वायर, ओके, माइनस दिस टाइम 6x प्लस 1, ओके। तो आदिल अब मैं क्या करूंगा बेटा बताओ, आई विल राइट x, ठीक है, ये x यहाँ पे लिखना है बेटा, देन चले इस बार प्लस कर देते हैं, चलें एक्स स्क्वायर प्लस, तो बेटा ये वाला प्लस आप यहाँ लिखो, प्लस, एंड देन इस 6 को हाफ करें बेटा, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आता है 3, तो उस 3 को बच्चों लिखें यहाँ पे 3 स्क्वायर, एंड देन एज आई सेड कि हमेशा आपने इस नंबर का स्क्वायर बाहर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर एंड देन +1 ऑलरेडी था उसको लिख दें, तो ये बच्चों आपका आंसर है। स्टूडेंट इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज हमने टॉपिक कवर कर रहे हैं बच्चों, हम जस्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमने इसकी बहुत ज्यादा एग्जाम प्रैक्टिस करनी है पास्ट पेपर से, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ मैं सारे टॉपिक्स कवर करूं जल्दी जल्दी और मैं पास्ट पेपर्स पे जाऊं, ठीक है, ताकि आपका थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज हो तो आप पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर सकें। अच्छा, अब मुझे एक छोटा सा टॉपिक था, कल मेरे माइंड में नहीं था, आज मुझे अलजेब्रा में याद आ गया, तो बेटा रेसिप्रोकल इक्वेशन, अब ये क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल इक्वेशंस अब सबको आता है, बी कॉन्फिडेंट, ओके।
आप सबको बच्चों याद है, तो मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूं एंड वी विल सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। आदिल बेटा क्लियर हो गया? प्लीज मुझे मैसेज कर दें, चैट कर दें। आदिल क्लियर हो गया आपको बेटा? ओके, सॉल्व। आदिल वेरी गुड। 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। जी लीना आमिर। यस लीना, यू कैन आस्क बेटा, आप अनम्यूट हो। बेटा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप एक्सेप्ट करें ना, वहां एक्सेप्ट करना होता है। अच्छा, सॉल्व दिस इक्वेशन बेटा, आपके पास नोट्स होंगे, प्लीज सॉल्व दिस। तो आपने बेटा सुना होगा हाउ टू टेक एलसीएम। जब इन इन केस ऑफ टू टर्म्स, ठीक है, तो आपको पता है बच्चों, इट इज सो सिंपल टू टेक एलसीएम। बेसिकली आपने डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, प्लीज देखें। 3x ओवर x प्लस 1 माइनस -2 ओवर x माइनस 1। अच्छा बच्चों, ये ना आपने अपने माइंड में करना है। जो मैं यहाँ पे स्टेप करने लगूँ बेटा, ये अपने माइंड में करना है। ठीक है, ये देखिए जरा, माइंड में क्या करना है कि यहाँ देखिए x प्लस 1 पड़ा हुआ है ना। यहाँ बच्चों x प्लस 1 है, यहाँ x माइनस 1 है। तो इट्स मीन यहाँ पे एक x माइनस 1 भी होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम खुद से लगा लेते हैं। ये क्वेश्चन था ना बेटा, हम खुद से ना एक x माइनस 1 लगाते हैं यहाँ पे। डॉट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ बेटा x माइनस 1 है, वहां पे x प्लस 1 पड़ा हुआ है। तो मुझे डिनोमिनेटर सेम करने हैं ना। तो यहाँ पे x माइनस 1 x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है। तो आपको पता है आप क्या करोगे बच्चों, प्लीज डू नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। अगर ये आपको पहले से आता है, प्लीज डू नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। जो आपको मेथड आता है आप करें, बस इसका मुझे आप एलसीएम लेके दें। ठीक है, अब देखें बच्चों, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इट इज सो सिंपल, सिंपली राइट 3x इंटू x माइनस 1 -2 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो बेटा उनको एक बार लिखते हैं। सो सिंपली राइट x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3। फाइजा बेटा, आर यू हेयर? फाइजा, न्यू स्टूडेंट, वेयर इज फाइजा? फाइजा, yes. फाइजा बेटा, is there any problem? You can ask me in WhatsApp chat or Zoom chat बेटा। अलीना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ ना बार बार। अलीना, आप बेटा अनम्यूटेड है ना, आप एक्सेप्ट करें ना। लेट्स सॉल्व दिस बच्चों। 3x into x will be 3x square minus 3x minus 2x minus 2 is equals to 3 into x minus 1 into x plus 1। बच्चों, who will tell me what is x minus 1 into x plus 1? Although we can expand these brackets, but is there any identity, third identity, a square minus b square? So it will be 3x square minus 5x minus 2 is equals to 3 into x square minus 1. 3x square minus 5x minus 2 is equal to 3x square minus 3. Okay, 3 will be cancelled out. Wow. So minus 5x, बेटा मैंने देखे मिस्टेक तो नहीं कर दी कोई? So x is going to be 1/5.
x is going to be -1/5, sorry. अलीना, मुझे समझ नहीं आ रही बेटा, आप अनम्यूट क्यों नहीं हो रहे? ज़ारा बेटा, इनको अनम्यूट कर दें प्लीज, ज़ारा। ओके सर। अलीना बार बार मैं तो कर रहा हूँ, आई थिंक वो एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होती है अनम्यूट की। चले बच्चों, ये एग्जाम क्वेश्चंस है बच्चों, ये सेल्फ मेड क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चले, एक और क्वेश्चन है बच्चों। सी दिस क्वेश्चन, ये देखें, नजर क्यों नहीं आ रहा, ये लुक एट दिस। ठीक है, तो ये एग्जाम क्वेश्चंस है, मैं लिखता हूँ, खुद सॉल्व करें, शाबाश। 12/x+2 plus 10 divided by Faiza, just raise your hand beta if you don't have any problem, just raise your hand. अलीना मेरा अनम्यूट नहीं हो रही। चले बच्चों, सॉल्व करें इसको। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, ये तो सेम है बच्चों, वही है, बिल्कुल वही है। चले शाबाश, क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय x+2 into x-1 over x-1 plus 10 over x-1 into x+2 over x+2 is equal to 7/2. So then denominator beta same हो जाए, तो you will simply write it for one time, x+2 into x-1 and then 12 into x-1 plus 10 into x+2 is equal to 7/2. Simply beta solve it, खुद solve करें, शाबाश। x+2 into x-1 is equal to 7/2. So 12x plus 10x, 22x, minus 12 plus 20 is 8 divided by x plus 2 into x minus 1 is equal to 7/2. Cross multiply बच्चों करें, let's cross multiply. I'm sorry. अलीना बेटा, मैंने 2 into 22x plus 8 is equal to 7 into x plus 2 into x minus 1. Okay, so 44x plus 16 is equal to 7 into x square minus x plus 2x minus 2. 44x plus 16 is equal to 7 into x square, 2x minus x minus 2. So 44x plus 16 is equal to, करें बच्चों? बच्चे मुझे कैसे आप बहुत तेज लिख रहे होते हैं, तो चलिए आप खुद करें। प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन बच्चों, डू वट एवर यू वांट। ये लें, बस मुझे सॉल्व करके ना आंसर बता दें। मे बी बेटा यू विल एट द एंड यू विल गेट सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अनम, यू नो हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों आपने क्लास मिस नहीं करनी प्लीज, आपको पता ही नहीं है कि पीटीएम पे मैंने पेरेंट्स के सामने आपकी अटेंडेंस रखनी है, बस मुझे बताना नहीं चाहिए था ये आपको। ये जो ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस है ना बेटा, आई विल प्रेजेंट दिस अटेंडेंस इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स ऑन पीटीएम के। ये देखें जी, बच्चा फेल है और फिर भी क्लासेस नहीं ले रहा। Anam, never miss any class, okay? So 0 is equals to 7x square plus 7x minus 44x
-14 -16, that's it बच्चों. So 0 is equals to 7x square, 7x minus 44 minus 37x, and then it will be minus 30. Okay. So students, this time you have a quadratic equation. Okay. अब बेटा लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन थोड़ी सी मुझे मुश्किल लग रही है, बड़े बड़े नंबर्स हैं. तो a इज 7, c is minus 30, so x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. x is equals to minus into minus 37. बेटा आपको तीनों रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी इंशाल्लाह. आज मैं कर दूंगा अपलोड यूट्यूब पे. ठीक है. रिजा सिंह, विच मेथड बेटा? वट एवर यू सूट्स यू बेटा, आप जो कंफर्टेबल हो. आई थिंक क्वाड्रेटिक फार्मूला स्ट्रॉन्ग मेथड होता है, तो वही लगा दें. बाकी फैक्टराइजेशन थोड़ा सा मुश्किल है ना. फैक्टराइजेशन कैसे सोचोगे? 7 30s are 2 10, तो कैसे बेटा बनाओगे फैक्टर्स? आई थिंक 42 and 5 बनते हैं ऐसे बेटा. फैक्टर्स बनते हैं 42 and 5. 42 2 10 और हाँ 42 और 10, 42 और 4 बनते हैं. 4 या 5 सॉरी. तो -37 स्क्वायर -4 इंटू 7. बट वो आप ना करें, आप बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें. 2 इंटू 7 चैलेंजिंग. 37 प्लस माइनस -37 स्क्वायर. तो 37 का स्क्वायर बेटा होता है 1369 प्लस 4 टाइम 7 टाइम 4 टाइम 7 टाइम 30, that is 840 divided by 14. So 37 plus minus 1369 square root, not square root, 1369 plus 840. तो ये देखें बच्चों 47 आता है after taking square root. Beta, this was exam question, okay? Not made by me. So 37 plus 47 divided by 14, so I got 6. 37 minus 47 divided by 14, I got -5. That's it. चलें बच्चों, एक और करते हैं. It is so simple. Reciprocal equation. Solve 5x over x minus 3 is equals to x plus 4. Solve करें बच्चों. So 5x is equals to, आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना x minus 3 को x plus 4 के साथ. That's it. So x minus 5x minus 4x minus 12. That's it बच्चों. तो बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनी है, इसको सॉल्व करें. आई थिंक फैक्टर्स ही बन जाएंगे ना.
-6 + 2। यस, सॉल्व करें बच्चों इसको। Nurel beta, very good. Shanze, where is Shanze? Shanze, just raise your hand. I couldn't find you, beta. X square minus 6x. Khadija Rafiq, just raise your hand. Uswa Zahid, Uswa, where are you? करते हैं बच्चों कल पेरेंट्स से बात आपके। 0 is equals to x into x minus 6 plus 2 into x. That's it. That's it बच्चों। एज आई सेड लाइबा बेटा, आपके टॉपिकल्स नहीं आए तो वीकेंड तक परचेज कर लें। वीकेंड में बेटा मैंने मैराथन लेनी है क्लासेस, तो ये ना हो आपको 2 आवर्स की क्लास वो मिस हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। आई जस्ट वांट टू शो अ क्वेश्चन बच्चों, जरा ये देखें प्लीज आप। बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फिर इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। सो दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। चलें भाई, आपको आइडिया हो जाएगा एग्जाम में ना कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना वो। ऑल्दो कि हम एग्जाम प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। लुक एट दिस क्वेश्चन। राइट x square plus 10x plus 6. It is asked in May June 2021. x square plus 10x plus 6 in this form. तो बेटा ये कौन सी फॉर्म होती है आदिल? बेटा कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म होती है ना। चले बताएं शाबाश, क्या होती है कंप्यूटिंग स्क्वायर? यहाँ से x को लिखना होता है, यहाँ से प्लस को पिक करना होता है। 10 का बेटा क्या होता है? हाफ, 5 इसका स्क्वायर, देन माइनस इसी 5 के स्क्वायर को बेटा बाहर सब्ट्रैक्ट करना होता है, एंड देन प्लस 6 अपनी जगह पे एज इट इज। मैंने जो इतने एरोस लगाए हैं ना बेटा, ये आपका मेंटल मैथ है। इस तरह आप सोचते हो कि यार ये हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है वहां आपने ये करके नहीं दिखाना एग्जामिनर को। ये देखें, ये स्टेप है जी। दोबारा सुनने देखें, टू टू मार्क्स हैं इसके ना। यहाँ पे लिखें x प्लस 10 का हाफ 5, और इसी 5 का बाहर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 6 ऊपर से आएगा। तो एक और स्टेप कर लें, x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 6, ठीक है। सो x प्लस 5 whole square minus 25 plus 6 is minus 19. That's it. ये बेटा आपका आंसर है। Look at this part. Use your answer to part A. Solve this equation. तो बेटा ये तो वही इक्वेशन है ना। अब जो बच्चा इस इक्वेशन पे लगाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, he or she will get 0 marks. जो बच्चा इस पे लगाएगा फैक्टराइजेशन मेथड, उसको मिलेंगे 0। जो लगाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको लगाएंगे 0। क्यों भाई? वो कह रहे हैं कि यूज योर आंसर टू पार्ट ए। बेसिकली आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है बच्चों इसको, ठीक है। आपने ये आंसर यूज करना है यहाँ पे। कैसे यूज होगा? लुक एट दिस। इस पूरे को हमने शो कर दिया था स्टूडेंट्स। आई जस्ट प्रूव्ड इट दैट दिस थिंग became this. Okay, so instead of writing my equation, I will write the answer of previous part. So let's make x subject. So how you will make x subject? Bring 19 on the other side, take square root on both sides, plus minus 19 square root,
कैंसिल करें, सो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 19। आप बेटा सोच रहे होंगे एक नंबर है ना, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू बेटा, आप इसके कितने शॉर्ट स्टेप्स में कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर स्टेप्स यही है जो मैं कर रहा हूँ। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 19, x प्लस 5 is equals to minus under root 19. So x is equals to minus 5 plus under root 19. X is equals to minus 5 minus under root 19. So this is your answer. Look at this, Khadija. They were saying give your answer in this form. Check करें बेटा, वही फॉर्म नहीं बनी। हमारा p क्या है? p है हमारा -5 in both cases. Okay. And what is my q? q is this 19. ठीक है, q is this 19. Okay बच्चों, so that's it. This is my answer. Just give me a second. मुझे लग रहा है एक और क्वेश्चन भी ऐसा था, मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था आपके लिए। बट एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में कंप्लीटिंग स्क्वायर एग्जाम के अंदर ऐसे पूछते हैं वो। ये देखें बेटा, मैंने क्वेश्चन आप करवा दिया था ये भी। लुक एट दिस क्वेश्चन। ये बेटा हम अभी करके आए थे ऊपर। इट इज आस्क्ड इन अक्टूबर नवंबर 2022। ठीक है, तो हर साल कंप्लीटिंग स्क्वायर तो मस्ट आना है। ठीक है भाई, ये देखें जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 7, इसको बेटा बनाना है आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो बेसिकली यहाँ पे ए और बी लिखना है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 7, इसको बेटा आपने लिखना है एक्स माइनस 6 का हाफ 3, उसका स्क्वायर, देन माइनस 3 का स्क्वायर बेटा सब्ट्रैक्ट करना होता है, -7 एज इट इज। सो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर -9 -7, सो एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर -16। अच्छा, who will tell me what is a? Is it 3 or -3? What is b? Is it 16 or -16? तो बेटा let me tell you, देखें आप, when you will compare this answer with the form given in the question, तो you have to be very very carefully. ये देखें बच्चों, ये प्लस ये -3 था ना, तो इसको मैंने अंदर लिखना है और बाहर में प्लस लिखूंगा। देखें x प्लस a, so my a is -3 and plus my b is -16. okay, that's it. तो ये आंसर था। नेक्स्ट पढ़ें, hence। तो बच्चों जब भी ये वर्ड यूज होता है hence, तो hence का मतलब होता है आपने प्रीवियस पार्ट यूज करना है, प्रीवियस पार्ट यूज करना है, मस्ट। ठीक है, कैम्ब्रिज एक्सपेक्ट करता है दैट यू विल यूज द प्रीवियस पार्ट। अच्छा, व्हाट इज दिस ईमान? इज इट द सेम इक्वेशन? यस। तो आप इसकी जगह बेटा इसका आंसर यूज करेंगे, ये वाला आंसर। देखें, x -3 होल स्क्वायर -16 इक्वल टू 0, x -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x -3 होल स्क्वायर cancel out, plus -16, so x -3 is equals to plus -4, x -3 is equals to 4, x -3 is equals to -4, x is equal to 7, and x is equal to 3 - 4 is -1. तो -4 -1 7, that's it. तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा? रेसिप्रोकल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के दो क्वेश्चन पास्ट पेपर से किए हैं, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ऐसे ही सॉल्व किए जिनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व किया था, और फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया है। ठीक है, एंड बिफोर दैट जिससे हमने क्लास स्टार्ट की थी बेटा, दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है, हमने बेटा कल क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इसका ग्राफ्स देखने हैं कि इसका मिनिमम पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट क्या होता है, इसका फेस हैप्पी कब होता है, सैड कब होता है।
क्वाड्रेटिक ग्राफ के स्केच का मतलब क्या है, ड्रॉ का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 2021 के बाद कैम्ब्रिज बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स, उनके मिनिमम पॉइंट, उनके मैक्सिमम पॉइंट, तो बच्चों ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे सैटरडे संडे हमने अलजेब्रा के पेपर 1 पेपर 2 के सारे टॉपिकल्स 10 ईयर्स के कंप्लीट कर लेने हैं इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। प्लीज अपनी अटेंडेंस बेटा मेंटेन करें। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चे वही आए हुए हैं जो पास हैं। ठीक है, तो प्लीज रेगुलर हो जाएं और अपनी अटेंडेंस मेंटेन करें। अल्लाह हाफिज।